Hello everyone, this is Sanjeev from Parul University, a training placement cell coordinator, and in this video we are going to discuss the question which were asked in Dynatech company. As you all know that we have done with the placement of Dynatech company, and during the technical round they have asked 35 questions. And that 35 question we will bring in this screen, and today we are going to discuss in this video. So let's get started. I'm going to showing the questions, and you have, if you know the answer, you can also comment us, and you can exposure, you can see the questions, which type of questions they were asking. First of all, I would like to tell you that the type of the question are very easy. There is no coding question. There is only 35 MCQs, and all these MCQs are based on object oriented programming. So these are very easy, and if you are familiar with the language of C++, then this is quite very easy for you. Okay, so this is the question one, as you are already seeing in the screen. That is the question number one. If the function returns no value, then it is called. If the function returns no value, इसमें से हमें बताना है कि ऐसा कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कोई रिटर्न वैल्यू नहीं देता है. तो यू कैन सी दैट इसमें बच्चे कंफ्यूज भी हो सकते हैं. जो हमारे एमसीक्यूज में ऑप्शंस है डेटा टाइप फंक्शन, कॉलिंग फंक्शन, मेन फंक्शन एंड वॉइड फंक्शन. द वॉइड फंक्शन आई थिंक would be the answer which does not need any return value. Okay, and let's see that second question. Question number 2 which were asked is, which access specifier is usually used for the data members of a class. तो इनमें से सारे यूज होते हैं वैसे तो, लेकिन कौन सा है जो डेटा मेंबर, मतलब कौन सा डेटा मेंबर जो खुद भी यूज कर सकता है. तो ऑप्शंस तो हमारे पास थे प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक एंड डिफॉल्ट. तो डिफॉल्ट तो हो ही नहीं सकता, ठीक है. एंड इसमें आंसर आएगा प्राइवेट, क्योंकि पब्लिक विच एक्सेस स्पेसिफाई, तो इसके लिए प्राइवेट या प्रोटेक्टेड आंसर आना चाहिए. लेकिन फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इट शुड बी द प्राइवेट, जो अपने एक्सेस में यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट है which features of OOP is exhibited by the function of overriding. तो इनमें से कौन सा ऐसा फीचर्स है जो फंक्शन ओवरराइडिंग को बताता है, ठीक है. तो इसमें हमारे पास ऑप्शन था पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनहेरिटेंस. व्हाट डू यू थिंक विच आंसर शुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट? एंड आई थिंक इट शुड बी द पॉलीमॉर्फिज्म, एंड which exhibits the function overriding, because encapsulation is only the binding the data and abstraction is hiding the data. Inheritance we can say that कि we have extending the data. मतलब अगर आपके पास प्राइवेट है और पब्लिक क्लास है, मतलब दो डिफरेंट क्लास है, अगर आप ड्राइव क्लास बेस क्लास से कुछ प्रॉपर्टी ड्राइव करना चाहते हो तो वो सब इनहेरिटेंस में होता है. सो इन दिस आंसर वी आर गोइंग विद द पॉलीमॉर्फिज्म. एंड वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच अमंग द फॉलोइंग कैन शो द पॉलीमॉर्फिज्म. इनमें से ऐसा कौन सा है जो आपको पॉलीमॉर्फिज्म शो करेगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 5, if the function returns no value then it is called. अगर कोई function returns no value, ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट है. या I want to also say that there are 3 questions which are repeated. Okay, and I don't know, but they are also actually they are repeating. Okay, and ये little mistake है. Okay, function which of the following is the correct syntax for printing the address of the first element. इनमें से ऐसा कौन सा ऐसा है अगर हमें प्रिंट करना है एड्रेस ऑफ द फर्स्ट वैल्यू, तो ये होता है एरे का जो पहला वैल्यू होता है वो एक्चुअली एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर आर प्रोवाइडेड. इनमें से कितने एक्सेस स्पेसिफायर जो हमने अभी देखा था ना, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक एंड वन मोर डिफॉल्ट कह रहे थे, लेकिन एक्चुअली दे आर ओनली दिस प्राइवेट, प्रोटेक्टेड. प्राइवेट होता है, प्रोटेक्टेड होता है एंड पब्लिक होता है. ओके, वन मोर आई थिंक, बट these 3 are I remember right till now. In multi level inheritance, which of the next question we have, in multi level inheritance which is the most significant features of the OOPS object. तो इनमें से मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता क्या है, हमारे पास एक होता है उसके जस्ट नीचे आएगा मल्टी, फिर लेवल, वी हैव क्रिएटिंग द लेवल्स, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, दैट इज द लेवल्स. ओके, सो you have to answer which of the following is not a valid data type in C language. इनमें से ऐसा कौन सा है जो valid data type नहीं है. तो कैर होता है, कैर तो होता ही है, डबल्स भी होता है, आई थिंक डबल्स, फ्लोट भी होता है. लॉन्ग इज द आई थिंक द आंसर शुड बी which is not valid in the C language. Okay, question number 11, which type of members can't be accessed in derived classes of a base class. Which type? हाँ,
विच कांट बी, देखो इनमें से कौन सा ऐसा है जिसे हम एक्सेस नहीं कर सकते ड्राइव क्लास ऑफ अ बेस क्लास, मतलब कि आपके बेस क्लास के अगर आप ड्राइव क्लास में जाते हो तो ऐसा कौन सा इनमें से है जो एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो प्राइवेट वाला होता है जो कंफर्म है कि नहीं कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड में कर सकते हैं लेकिन उसके लिए कुछ वी नीड समथिंग हम करना पड़ता है, लेकिन प्राइवेट वाला इज कंफर्म द आंसर विच कांट बी एक्सेस बाय द ड्राइव क्लास, वो सिर्फ बेस में ही रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच अमंग द फॉलोइंग डजंट कम अंडर द ऊप्स कॉन्सेप्ट, इनमें से कौन सा ऐसा है जो ऊप्स कॉन्सेप्ट में नहीं आता है। तो डेटा हाइडिंग जिसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन, एंड डेटा हाइडिंग या एब्स्ट्रैक्शन, मैसेज प्रोसेसिंग भी होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड डेटा बाइंडिंग। तो इसका आंसर एब्सोल्युटली सी होने वाला है, क्योंकि डेटा बाइंडिंग हमारे पास होता है, दैट इज एनकैप्सुलेशन, एंड डेटा हाइडिंग इज एब्स्ट्रैक्शन, एंड मैसेज पासिंग व्हिच इज डन इन द पॉलीमॉर्फिज्म। तो द आंसर इन दिस question is platform independent. Which among the following, next question we have 13, question number 13, which among the following is the correct definition of is array function in C++? So I think you should check the options and I want this answer you should comment us. Okay, which of the following is not a true about the polymorphism? polymorphism में इनमें से कौन सा है जो सही नहीं है? ठीक है, तो helps in redefining the same functionality, increase the overhead and increase the overhead of function definition always, it is the feature of oops, ये तो है। ठीक है, erase in readability, ease in readability, तो ये भी है। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में से कुछ होने वाला है। ठीक है, helps in redefining the same functionality and increase the overhead of the function definition. So I think the answer should be the B1, functionality, same functionality, helps in redefining the same functionality. Now yeah, it should be the B. Okay, question number 15, which is among the array operation which operator represents the increment? increment कौन सा? ये वाला तो quietly easy, we are going to do very easy। हमारे पास जो पहला वाला ऑप्शन है वो हमारे डिक्रीमेंट को शो करता है, दूसरा ऑप्शन है वो इंक्रीमेंट को ही शो करता है, जो सी है वो माइनस को रिप्रेजेंट करता है, एंड डी जो डी है हमारे पास वो एंड और उसमें होता है, उसमें शो करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, विच इज डेफिनेटली द करेक्ट वन। एड्रेस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, अ पॉइंटर इज, पॉइंटर्स का पॉइंटर होता है क्या? एक वैसे फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंटर्स एक ऐसा होता है, एक एड्रेस स्टोर करता है किसी भी एक पर्टिकुलर डेटा का। ठीक है, तो एड्रेस होता है वेरिएबल का, हाँ ये बिल्कुल सही है। अब वेरिएबल ऑफ सॉर्टिंग एड्रेस नहीं, डेटा टाइप नहीं, एंड इंडिकेटिंग द वेरिएबल्स कैन बी एक्सेस टू द नेक्स्ट। हाँ, तो इंडिकेटिंग द वेरिएबल्स ये भी हो सकता है, एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल भी कह सकते हैं। हाँ, एड्रेस तो नहीं, एड्रेस वो स्टोर करता है एड्रेस को, वो इंडिकेट कर सकता है। ये ए और डी में ऑप्शंस में कंफ्यूजन है, एंड आई थिंक इंडिकेटिंग द वेरिएबल ऑफ नहीं, इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा ए, आई थिंक सो, इट कुड बी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, which of the following is the correct syntax to print the message in C++? C++ में ये वाला क्वेश्चन बहुत ही एक्साइटिंग और अच्छा था। क्यों? क्योंकि एक्चुअली इसके अंदर आपको लग रहा है कि आंसर बी नहीं होना चाहिए, ए होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन ये भी आंसर गलत है। ठीक है, इसका आंसर नन ऑफ दीज था, बिकॉज आप जो लिख रहे हो, इफ यू आर राइटिंग द कोड, तो दे आर C++ लैंग्वेज इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। सो सी आउट का जो सी है वो कैपिटल नहीं होना चाहिए, इट शुड बी द स्मॉल। सो द आंसर इज नन ऑफ अबव। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, यूनियन डिफर फ्रॉम द स्ट्रक्चर्स इन द फॉलोइंग वे। ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा मिस्टेक है इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन क्वेश्चन सही है, ऑप्शन में थोड़ा मैंने गलती करी है लिखने वक्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 इज द एंड और ऑपरेटर कंपेयर्स टू। अब इसमें भी देखो आंसर तो सेम है, मतलब न्यूमरिक को करता है, बुलियन को करता है, लेकिन इसमें वैल्यूज है, तो यू हैव टू comment as the correct answer of this question. Which of the following statement is correct about the formal parameter in C++? ठीक है, the question is quite थोड़ा parameters को है, parameters के ऊपर जो हम कभी जो brackets के अंदर स्टोर करते हैं ना, integer a, integer and comma करके, that is the question. तो parameter which is used in defining the of the function, हाँ ये हो सकता है। variable that are never used in the function, ये बिल्कुल नहीं होगा। वेरिएबल अदर देन पास पैरामीटर इन अ फंक्शन, ये भी हो सकता है। पैरामीटर विद विच फंक्शंस आर कॉल्ड, तो ऑप्शन डी आई थिंक वुड बी द करेक्ट वन। ठीक है, पैरामीटर्स जो कि फंक्शंस को कॉल करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द फोर्थ एलिमेंट? वन ऑफ द गुड क्वेश्चन, बहुत से बच्चे
मैंने देखा था कि इसको गलत करके आ रहे थे इतने इजी क्वेश्चन को। गाइस मैं आपको फिर भी एक बार रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि जो एरेज होता है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। अगर आपको 4th वैल्यू चाहिए तो आपको एलिमेंट एरे ऑफ 3rd वैल्यू से स्टार्ट करना होगा। ओके ये यहाँ पे 2 ऑप्शन सेम दिख रहे हैं लेकिन एक्चुअली दे आर नॉट द सेम। ओके you can see that they are with the semicolon and these are the columns। तो semicolon तो बिल्कुल गलत ही होता है, ठीक है। and the answer in this question is the C option because जो 0 से शुरू होता है and we have to if we access the 4th element then we have to go with the option number C, that is array of 3rd। next question, which of the following character is used to terminate an instruction in C program। तो अगर आपको टर्मिनेट करना है, ये वन ऑफ द इजी क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको टर्मिनेट करना है अपने सी प्रोग्राम के अंदर तो आपको कॉलन यूज ना करके सेमीकॉलन, जो इसका प्रीवियस मैंने बता दिया, ठीक है, तो आपको सेमीकॉलन ही यूज करना होगा। तो इसका आंसर डी होने वाला है। ओके क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑपरेटर कैन बी यूज टू फ्री द मेमोरी एलोकेशन। तो इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इजी बट थोड़ा सा ट्रिकी है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर डिक्लेयरिंग द एरे। अगर आपको एरे को डिक्लेयर करना है तो कौन सा इनमें से सही है। अब एक मिनट, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको। जो इसके अंदर मैंने ऑप्शंस लिखे हैं इंट इंट इंट, इसका आई कैपिटल है, तो आप मुझे ये कोई कमेंट करके नहीं बताएगा कि यहाँ पे आई कैपिटल है तो फिर ये गलत है। नहीं, एक्चुअली ये थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हुआ है लेकिन दे आर द करेक्ट, ऑप्शंस आर करेक्ट। आपको इसमें बताना है कि कौन सा इसमें करेक्ट सिंटेक्स है फॉर डिक्लेयरिंग द एन एरे। तो इसका आंसर है हमारे पास सी ऑप्शन, बिकॉज सी ऑप्शन में एक हम किसी भी एरे को डिक्लेयर करना होता है तो सबसे पहले हम उसका डेटा टाइप देते हैं जो कि एक इंट है, फिर इस एरे का नाम देते हैं जो कि हमने एरे ही रखा हुआ है, उसके बाद उस अंदर की वैल्यूज डालते हैं। अगर आप वैल्यू नहीं भी डालते हो तो चलेगा, लेकिन करेक्ट ये ही सही है क्योंकि इसके आगे सेमीकॉलन भी लगा है। इसके आगे सेमीकॉलन नहीं लगा, इसके आगे कॉलन लगा और नन ऑफ अबव नहीं हो सकता। तो वी हैव द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज सी ऑप्शन। सो वी हैव और कवर 24 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, हाउ टू एक्सेस द प्राइवेट मेंबर ऑफ अ क्लास। आप प्राइवेट मेंबर के क्लास को ऑब्जेक्ट एक्सेस करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हैं? यूजिंग क्लास एड्रेस, यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, यूजिंग ऑब्जेक्ट पॉइंटर और यूजिंग एड्रेस मेंबर ऑफ अ फंक्शन। So this question is quite very easy. You can comment us this answer. Okay. Next, which of the following statement is not a true about C language? इनमें से ऐसा कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही नहीं है C लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। तो इसमें every instruction is terminated by semicolon. This is absolutely the correct answer. मतलब करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन हमें इनकरेक्ट बताना है। एक मिनट, हाँ इनकरेक्ट बताना है। तो इट इज अ केस इनसेंसिटिव। तो पहली बात बता दो, सी लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज और जावा लैंग्वेज, ये सब लैंग्वेज होती है वो केस सेंसिटिव है। अभी तक के सिनेरियो में टिल नाउ ओनली द HTML इज द लैंग्वेज विच इज केस सेंसिटिव, केस इनसेंसिटिव। बाकी सारे मैंने अभी तक जितने पढ़े हैं सब केस सेंसिटिव होते हैं। अगर कोई अदर लैंग्वेज है जो केस सेंसिटिव नहीं होता है, केस इनसेंसिटिव होता है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें आंसर जो है वो बी ऑप्शन है, इट इज अ केस इनसेंसिटिव। ये एक ऐसा ऑप्शन है जो गलत है। ओके नेक्स्ट, हाउ टू एक्सेस द डेटा मेंबर ऑफ अ क्लास। मैंने बताया ये शायद रिपीटेड है, नहीं रिपीटेड नहीं है। तो आप डॉट से, एरो से और डायरेक्ट से, एरो ऑपरेटर यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है एक्चुअली, एक ऑप्शन को थोड़ा मिस कर गया हूं मैं, ठीक है। एंड डॉट एंड एरो, तो इसका आंसर है आप डॉट से भी कर सकते हो, एरे से भी, एरो जो लगाते हैं ना टिक 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 करके, इससे भी कर सकते हो और डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो। तो इसका आंसर आई थिंक फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू ए होना चाहिए। Which access specifier is usually used for data member of a class? अब ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है तीसरी बार, ठीक है। ये क्वेश्चन सही में रिपीट हुआ है बट आई डोंट नो। हाउ मेनी वैल्यूज कैन बी रिटर्न्ड फ्रॉम अ फंक्शन। एक फंक्शन आपको कितनी वैल्यूज दे सकता है, कितनी वैल्यू रिटर्न कर सकता है, ठीक है। अब हम मल्टीपल कर सकते हैं बट एक फंक्शन के अंदर अगर हम कोई चीज देते हैं तो वो आउटपुट में एक वैल्यू तो जरूर देता है। तो इसका आंसर एटलीस्ट 1 तो होना ही होगा, ठीक है। एटलीस्ट 1 वैल्यूज तो देता ही है। इन C++, क्वेश्चन नंबर 30, इन C++ अ फंक्शन कंटेन्ड विद इन अ क्लास इज कॉल्ड। जो एक फंक्शन जो क्लास के अंदर ही है उसको हम क्या कहते हैं? तो हम क्या कहते हैं? तो इट्स अ मेथड, हम मेथड भी कह सकते हैं, मेथड फंक्शन कहते हैं, क्लास फंक्शन कहते हैं, नन ऑफ दीज। इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दिस वन इज द इजी वन। ओके क्वेश्चन नंबर 31 and this question is repeated once again। मैं थोड़ा shuffling करने में, लेकिन repeat था ये। Which features of OOP illustrated that the code reusability। अब इन सब में से कौन सा ऐसा है, तो आगे
इनमें से जो रीयूजेबिलिटी को बताता है? तो एब्स्ट्रैक्शन नहीं, रीयूजेबिलिटी, कैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसका आंसर आप हमें बता सकते हैं, ठीक है, बट दिस क्वेश्चन इज इजी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू एनक्लोज द बॉडी ऑफ द फंक्शन? आप किसी फंक्शन की बॉडी को बंद करना हो तो हम कैसे बंद कर सकते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन, यू कैन सी दैट ऑप्शन बी और सी तो टोटली गलत है, ठीक है। सी और ए में आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है, लेकिन इसका आंसर ए ऑप्शन है। हम किसी भी फंक्शन को कर्ली ब्रैकेट की हेल्प से उसको क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, विच इज नॉट अ फीचर्स ऑफ ऊप्स इन जनरल डेफिनेशन? ऊप्स का इनमें से कौन सा फीचर नहीं है, ठीक है? तो डुप्लीकेटेड डेटा इज द वन ऑफ द फीचर विच इज इनकरेक्ट। ऑप्शंस में था हमारे पास एफिशिएंट कोड, कोड रीयूजेबिलिटी, मॉड्यूलैरिटी एंड डुप्लीकेट ऑफ डेटा। तो ये ऑप्शन वाला गलत है। नेक्स्ट, एनकैप्सुलेट एंड एब्स्ट्रैक्शन डिफर एज। अब ये दोनों आपस में कैसे अलग है? एनकैप्सुलेशन में आपको पहले ही स्टार्टिंग के वीडियोस में बता चुका हूँ। एनकैप्सुलेशन होता है क्या कि जब हम डेटा को बाइंड करते हैं, बाइंडिंग, एंड एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? हाइडिंग ऑफ द डेटा। तो इसका बाइंडिंग एंड हाइडिंग, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये 35 क्वेश्चंस थे जिन्होंने करेक्ट करे हमारे पास। वी हैव दिस क्वेश्चंस जिन्होंने करेक्ट करे थे अप्रॉक्स 169 स्टूडेंट, 169 और 105 स्टूडेंट्स में से जो टेक्निकल राउंड के, मतलब कि हम एक्चुअली एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू वी हैव sorted the different 3 category of student. Actually they are coming, this company Dynatech system is coming for the 3 different post, one for the software developer, other is business analytic, and one more where MBA student are going to participate in that post. Okay, so out of this we have segregate all the student, and this interview, this technical round is only for the software post. Okay, so after 105 students are going to participate in this quiz and this technical round, and out of these only 69 students who qualify that, and after that we have taken the HR round and the results will be announced. Results we are going to give you very soon, and 69 students are those who qualify this exam. Okay, so you can see that how the good questions are coming, and in this video we are going to finish it. नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे, मतलब नेक्स्ट कंपनी का। एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। दिस इज संजीव साइनिंग ऑफ।